Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with the topic logarithms. ठीक है, डिस्कस करते एकदम बेसिक से what exactly is a logarithm. एग्जाम्पल लेते हैं. Say suppose 2 to the power 3 is equal to 8. ठीक है, we know that 2 to the power 3 is equal to 8. Then from this log 8 to the base 2 is equal to 3. कैच करने का कोशिश करो. 2 to the power 3 is equal to 8. Then log 8 to the base 2 is equal to 3. So if I say that a to the power x is equal to c, then how will you express as a log, as a logarithm? Then log c to the base a is equal to x. क्लियर है? ये logarithms है. So what is a logarithm? Logarithm of a number. एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं. 2 to the power 3 is equal to 8. So log 8 to the base 2 is equal to 3. So logarithm of a number 8, log 8 to a given base is 2, is the index or power. Index or power is 3, to which the base is 2 must be raised, yani 2 to the power 3, to produce the number which is 8. That is to make it equal to the given number 8. So फिर से the logarithm of a number 8 to a given base 2 is the index or the power 3, to which the base is 2 must be raised, so 2 to the power 3, to produce the number is 8, to make it equal to the given number 8. Clear hai? So 2 to the power 3 is equal to 8, which means log 8 to the base 2 is equal to 3. Logarithm of a number 8 to a given base 2 is the index or the power 3, to which the base 2 must be raised, that is 2 to the power 3, to produce the number 8, that is to make it equal to the given number 8. Clear hai? If there are Yes, three sir. quantities, slowly and steadily कर रहे हैं, मेरे को मैथ्स के साथ कोई रश नहीं. If there are three quantities indicated by say a, x and n, and if a to the power x is equal to n, then logarithm of n to the base a is equal to x. So log n to the base a is equal to x. अब मेरे को हेल्प करो. 3 to the power 4 is equal to 81. Then logarithm बताओ. Log 81 to the base 3 is equal to 4. Clear?
vice versa. Vice versa. If I say that 3 to the power, if I say that log 27 to the base 3 is equal to 3, then from here we can say that 3 to the power 3 is equal to 27. Again, if I say that log a to the base b is equal to c, then it means b to the power c is equal to a. Clear? ग्रैप्स करने का कोशिश करो. हुआ? समझ में आया? क्लियर है? सर एक बार आप वो log a n equals to x कैन यू एक्सप्लेन वो वाला अगेन? ये वाला ना. यस सर. So a to the power x is equal to n, which means log n to the base a is equal to x. जिस तरीके से ऐसे समझो, रिप्लेसमेंट करो. सपोज a is 2 and x is 3 and n is 8. So we say that log 8 to the base 2 is equal to 3. अंडरस्टूड सर. So इधर में देखो, 2 to the power 4 is equal to 16. So we say that log 16 to the base 2 is equal to 4. Then 10 cube is equal to 1000. So log 1000 to the base 10 is equal to 3. अब ये वाला बताओ. 5 to the power minus 3 can be written as 1 divided by 5 to the power 3, and 5 to the power 3 is equal to 125, which means 5 to the power minus 3 is equal to 1 divided by 125. So log 1 divided by 125 to the base 5 is equal to minus 3. Clear है? 2 to the power 3 is equal to 8. So log 8 to the base 2 is equal to 3. Right. Next. The two equations, that is, if a to the power x is equal to n, if a to the power x is equal to n, then log n to the base a is equal to x. So these two equations, 1 and 2, are only transformations of each other. Are only transformations of each other. यानी अगर अपने को ये दिया हुआ है कि log n to the base a is equal to x, then we can say that a to the power x is equal to n. Vice versa, if a to the power x is equal to n is given, then we can say that log n to the base a is equal to x. So if it is given that log n to the base a is equal to x, then we can say that a to the power x is equal to n. So these two equations are only transformations of each other and should be remembered to change from one form of the relation into the other.
यानी हम लोग इक्वेशन 1 से 2 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड 2 से 1 में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 1 से 2, 2 से 1। यानी अगर अपने को कोई जगह log n टू द बेस a इज इक्वल टू x दिया हुआ है, तो हम लोग इसको a टू द पावर x इज इक्वल टू n बोल सकते हैं। और अगर अपने को a टू द पावर x इज इक्वल टू n दिया हुआ है, then we can say that log n to the base a is equal to x. क्लियर है? अब देखो, we know that suppose a to the power 0 is equal to 1, a to the power 0 is equal to 1, so इसको log में करो, which means log 1 to the base a is equal to 0. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? ठीक है, इससे अपने क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि log 1 is equal to 0. log 1 to any base, log 1 to any base is equal to 0. yes correct बेटा। ठीक है, so log 1 to any base is equal to 0. so if I say that log 1 to the base 21, so log 1 to the base 21 is equal to 0, because we know that 21 to the power 0 is equal to 1. so log 1 to the base 27 0 है, because 27 to the power 0 is equal to 1. yes, ठीक है। so log 1 to any base is 0. The logarithm of 1 to any base is 0. This is because any number raised to the power 0 is 1. क्लियर है? तो ये चीज अपने को लिखना है, मतलब इन दैट नोटबुक जो मैंने लास्ट क्लास बोला था, जिसमें अपने सारे फॉर्मूलाज को लिख रहे हैं। तो अभी सबसे पहले आपको ये लिखना है, ये कन्वर्जन लिखना है, ये वाला, ये एक लिखो अपने नोटबुक में कन्वर्जन। देन सेकेंड ये वाला लिखो, log 1 to any base is equal to 0. So log 1 to the base a is equal to 0. Then the logarithm of any quantity to the same base is unity, which means what? We know that a to the power n, a to the power 1, a to the power 1 is a itself, a to the power 1 is a. So log a to the base a is equal to 1. Log a to the base a is equal to 1. So logarithm of any quantity to the same base, logarithm of a to the same base a is unity, means 1. So log 253 to the base 253 is equal to 1, because 253 to the power 1 is equal to 253. This is because any quantity raised to the power 1 is that quantity only. तो ये एक अपने को और याद करना है। ठीक है, समझ में आया? सो अपने क्या समझे? अपने पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन को समझा, तीन चीज हमने अभी तक समझा है। पहले ट्रांसफॉर्मेशन को समझे कि a to the power x is equal to n, then log n to the base a is equal to x. सेकेंड हमने ये समझा है कि log 1 to any base is always 0. थर्ड,
log of any quantity to the same base is always 1. तो सिंपल में log a to the base a is 1, log b to the base b is equal to 1. क्लियर है? चलो थोड़े से इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हैं। जैसे इधर में log square root of 2 to the base a is equal to 1 by 6. यानी we can say that a to the power 1 by 6 is equal to square root of 2. Yes or no? If log square Yes. root of 2 to the base a is equal to 1 by 6, then a to the power 1 by 6 is equal to square root of 2. अब इसको आगे सॉल्व करो। Square root of 2 is 2 to the power 1 by 2. So a to the power 1 by 6 is equal to 2 to the power 1 by 2. Then a to the power 1 by 6 जो है उसको अगर अपने RHS में ले जाए तो क्या होगा? मल्टीप्लाई a to the power 1 by 6 is equal to 2 to the power 1 by 2. हम लोग को a का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड a के पावर में 1 by 6 है, तो उसको अगर अपने RHS में ले जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। So 2 to the power 1 by 2 into 6 is, 2 to the power 3. so a is equal to 2 to the power 3 is equal to 8 है ना? Yes, sir. So a is equal to 8. यहाँ तक पूरा डिस्कशन क्लियर है? Then find the logarithm of 5832. लिख लेते हैं इसको। log 5832 to the base 3 into square root of 2. तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? logarithm of 5832. So log 5832 to the base 3 into square root of 2. तो ये फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करना है? से it is equal to x. Say log 5832 to the base 3 into square root of 2 is equal to x. तो अब बोलो 3 into square root of 2 to the power x is equal to 5832. हम लोग को क्या निकालना है इसमें? x का वैल्यू निकालना है, बिकॉज log 5832 to the base 3 into square root of 2 we have taken as x. तो हम लोग को तो ये log का वैल्यू निकालना है, तो हमने इसको x अज्यूम कर लिया। तो इन शॉर्ट हमें x निकालना है। तो अगर हम इक्वल टू x लिखते हैं देन इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5832। तो इसमें अपने को x निकालना है। तो ये हमारे पास है। तो x को निकालने के लिए क्या करना है? याद करो इंडिसेस का एक रूल, व्हेन द बेस इज सेम द पावर इज इक्वल। तो अपने को क्या ट्रिक यूज करना है कि 5832 को भी ऐसे कन्वर्ट करना है जिसमें बेस होगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर समथिंग, बिकॉज व्हेन द बेस इज सेम द पावर इज इक्वल। तो 5832 को ऐसे कन्वर्ट करना है जिससे बेस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आए टू द पावर समथिंग। सो बेस अगर सेम होगा पावर विल बी इक्वल, तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो 5832 को कैसे करें? 5832 can be written as 8 into 729. 8 is what? 2 to the power 3.
and 729 is 3 to the power 6. क्लियर है ना? 5832 को एक्सपैंड करेंगे तो इट इज इक्वल टू 8 इंटू 729. 8 is 2 to the power 3 and 729 is 3 to the power 6. अब देखो 2 to the power 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताना मेरे को. क्योंकि मेरे को ये दोनों का पावर सेम लाना है. क्या 2 to the power 3 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 to the power 6 लिख सकता हूँ? वाई? बिकॉज देखो, है ना? क्लियर है ना? जैसे 2 to the power 3 है, ध्यान से सुनो, 2 to the power 3 है, तो मेरे को इसका पावर भी 6 में लाना है. ठीक है, तो कैसे? 2 to the power 3 can be written as half into 6, because 2 6 cancel 3 आ रहा है. So 2 to the power half is square root of 2. समझ में आया कि नहीं आया? So this is 3 into square root of 2 to the power 6. तो इधर में x is equal to 6. ये क्लियर है कि लिख कर समझाना है? मतलब और अच्छे से समझाना है कि क्लियर है? फटाफट रिस्पॉन्ड करो. तो वापस समझाना. हम्म. यस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ऊपर को इलस्ट्रेशन 1 भी क्लियर नहीं है. क्लियर है भी? नो सर ओनली दैट 3 to the power इलस्ट्रेशन 1 सर क्लियर है. नहीं, yes ऊपर. sir that 3 root 2 equal to 5832 that one. अच्छा, 2 खाली क्लियर नहीं है, 1 क्लियर है. ऊपर को 1 क्लियर है कि नहीं? Yes ऊपर से पूछ रहा हूँ. ओके, ठीक है, तो पहले एक बार 2 हैंडल करते हैं, देन 1 को रिपीट कर दो. तो इलस्ट्रेशन 2 एक बार सम कॉपी कर लेता हूं मैं. जैसे क्वेश्चन है, लॉगरिथम ऑफ 5832 टू द बेस ये. ठीक है, यानी क्या फाइंड आउट करना है? लॉग 5832 टू द बेस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये फाइंड आउट करना है. तो इसको हम लोग x इक्वल टू x ले रहे हैं. यानी बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है. सो इसको अपने 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5832 लिख सकते हैं. यहां तक क्लियर है? ठीक है. यस सर. हम्म. तो अपने को 5832 के साथ ऐसा गेम खेलना है जिससे कि
5832 का जो नंबर है उसमें बेस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाए, टू द पावर समथिंग। मतलब 5832 को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि दैट इट इज, ध्यान से देखना साइड में लिख रहा हूं मैं, कि इट इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। मतलब 5832 का जो नंबर है इसको 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर समथिंग इस फॉर्म में लेकर आना है, जिससे कि व्हेन द बेस इज सेम द पावर इज इक्वल। तो इससे क्या होगा, मेरा x इज इक्वल टू a निकल जाएगा। x का वैल्यू निकल गया, वही अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है भी? ये पर्पस ऑब्जेक्टिव क्लियर है? यस सर। तो अपने को 5832 को 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर समथिंग में एक्सप्रेस करना है, जिससे कि बेस अगर सेम हो जाता है, बिकॉज एलएचएस में है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर एक्स, तो आरएचएस में भी 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर समथिंग अगर मैं ले आऊं, 5832 को ऐसे एक्सप्रेस कर दूं कि वो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर समथिंग आ जाए, तो एलएचएस एंड आरएचएस का बेस सेम हुआ तो पावर विल बी इक्वल, यानी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव ही एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एक्स, बिकॉज हमने log 5832 को एक्स अज्यूम किया था। तो 5832 के साथ क्या कर सकते हैं अपने? ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेटर लिया। मेरे को इधर में 3 and 2 दिखाई दे रहा है, मेरे को इधर में 3 and 2 दिखाई दे रहा है। तो मेरे को तो 3 अच्छी से दिखाई दे रहा है एंड 2 का स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, कि 5832 को मैंने कैलकुलेटर में लिखा 5832, उसको डिवाइड किया 3 से, 3 से डिवाइड करते चला गया जब तक कि डेसिमल ना आए। 5832 को मैंने कैलकुलेटर में टाइप करके डिवाइडेड बाय 3 किया एंड तब तक इक्वल टू प्रेस करते गया जब तक कि वो फ्रैक्शन या डेसिमल में ना आए, डेसिमल में ना आए। तो मैंने देखा कि मैंने कितना, 6 बार 5832 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 टाइम्स इक्वल टू प्रेस किया, यानी ये 3 to the power 6 है। 3 to the power 6 से ये डिवाइड हो सकता है। तो अभी मेरे पास आया है 8, आप कैलकुलेटर चेक कर लो, 8 आया है। समझा मैंने क्या किया, बानी परना ऊपर मैंने क्या किया बताओ? मैंने कैलकुलेटर में 5832 डिवाइड 3, देन इक्वल टू, जितना बार प्रेस कर रहा हूं काउंट भी करते जा रहा हूं, एंड इक्वल टू तब तक प्रेस कर रहा हूं जब तक कि डेसिमल में ना आए, यानी होल नंबर तक इक्वल टू प्रेस कर रहा हूं। तो इक्वल टू प्रेस किया 1 2 3 4 5 6, 6 बार इक्वल टू प्रेस किया तो 8 आया, एंड 8 को अपने 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी हमारा जो 5832 है, इट इज बेसिकली 8 इंटू 3 to the power 6। यस और नो? यस सर। क्लियर है? 5832 इज 8 इंटू 3 to the power 6, बिकॉज मैंने 6 बार 3 से डिवाइड किया। इसका मतलब 5832 इज डिविजिबल बाय 3 to the power 6। मैंने 6 बार 3 से डिवाइड किया, तो 5832 इज डिविजिबल बाय 3 to the power 6। करने के बाद 8 आया, तो इट इज 8 इंटू 3 to the power 6। तो 5832 इज 8 इंटू 3 to the power 6। अब 8 इज व्हाट?
2 to the power 3. अब मेरे को बेस LHS RHS में बेस को सेम लाने के लिए ये जो 2 है इसके साथ कुछ मॉडरेशन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। तो हमें देखना क्या मैं कर रहा हूं। सो 2 to the power 3 can be written as 6, 2 to the power 3 can be written as 2 to the power 6 into 1 by 2, बिकॉज मेरे को इधर इसको 2 को ऐसे मॉडरेट करना है जिससे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। सो 3 को अपने कैसे लिख सकते हैं, ये वाला 3 टू द पावर में जो है, पावर में जो है 3 को अपने कैसे लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2। सो 2 to the power 6 into 1/2 is equal to 3 only। तब देखो क्या मैजिक हो गया, 2 to the power half is a square root of 2 to the power 6। है ना। अब देखो हम मेरा LHS एंड RHS में बेस सेम आ गया। व्हेन द बेस इज सेम द पावर इज इक्वल। अब बताओ क्या फीडबैक है। समझ आ गया सर। समझ में आया ना। ठीक है। अच्छा, ऊपर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए अप टू रिवाइज इंडेसेस, मैंने कहा भी था यू शुड ऑलवेज कीप रिवाइजिंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। ठीक है। आई प्रेफर नॉट टू आंसर दैट क्वेरी अनलेस यू रिवाइज, बिकॉज रिवीजन करने से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है। वाणी को क्लियर है। तो आप उस like can you repeat from the second last step? ये देखो ना इधर में ना। नहीं सर, उसके नीचे। तो देखो ये क्या है। वो √2 हो जाएगा क्योंकि वो हाफ है पावर में, तो वो √2 हाँ to the power 6 हो जाएगा। हाँ। तो इसको ये देखो ना, इसको अपने क्या कर सकते हैं बोलो। ये जैसे ये हुआ ना, a to the power 6 into b to the power 6 is ab to the power 6। तो बेसिकली सर हमने √6 कॉमन ले लिया। इसको कॉमन कैसे बोल सकते हैं, ठीक है चलो आपकी भाषा में फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट ठीक है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको जैसे समझ में आए। ओके सर। ओके, क्लियर है ना। यस सर। ओके, तो x इज इक्वल टू 6 हो गया। अब इलस्ट्रेशन 1 एक बार रिपीट कर देता हूं। log square root of 2 to the base a is equal to 1/6। So we can say that a to the power 1/6 is equal to square root of 2। Square root of 2 is 2 to the power half। अब a के पावर में 1/6 है, तो उसको RHS में ले जाएंगे तो इंटू हो जाएगा वो। तो इधर में 2 to the power 1/2 into 6 is 2 to the power 3। 2 to the power 3 is equal to 8। So a is equal to 8। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, यहां तक पूरा डिस्कशन क्लियर है।
Yes, sir. देयर इज नो डाउट, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट को डिस्कस किया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या क्या डिस्कस किया? नंबर 1, if a to the power x is equal to n, then log n to the base a is equal to x. Vice versa, when it is given that log n to the base a is equal to x, we can transform this as a to the power x is equal to n. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड से हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, log 1 to any base is always 0. Log of any number to the same number is, or you can say log of any quantity to the same base is 1. So log a to the base a is 1, log b to the base b is 1. Then fourth में ये, yes बेटा बोल। So if there is a big number like 5832, then we will always divide by 3, or we can start with any number. मैं तो मेरे को इधर में 5832, जैसे मेरे को पता है कि 3 से डिवीजन का हो सकता है, जैसे 5 + 8 + 3 + 2 इज 18। तो अगर अपने सारे नंबर्स को ऐड करके ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा। बट अगर मेरे को पहले 3 से डिवाइड नहीं करना है, तो मेरे को लास्ट में नंबर 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक्स हो गया ना। जैसे लास्ट का नंबर 5 है, तो मैं पहले 5 से डिवाइड करूंगा। लास्ट का नंबर 2 है, तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। और 3 से डिवाइड करने के लिए मेरे लिए क्या रूल है कि मैं सारे डिजिट्स को ऐड करके देखूं कि जो आ रहा है नंबर, इज इट डिविजिबल बाई 3। जैसे इसमें 4 डिजिट है, 5832, चारों को ऐड करो, 5 + 8 13 + 3 16 + 2 18। सो 18 इज डिविजिबल बाई 3, यानी ये वाला जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाई 3। तो मैं 3 से डिवाइड करते चला गया। मैंने 3 से इसलिए पहले डिवाइड किया क्योंकि इधर में 3 होल नंबर में है, तो इसलिए मैंने 3 से डिवाइड करने का मतलब पहला स्टेप मेरा 3 से डिवाइड करने का था। बट यस, 3 से डिवाइड करने से पहले मैंने चेक कर लिया था कि वेदर इट इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। वो मैंने कैसे चेक किया था? चारों डिजिट्स को ऐड करके, 5 + 8 + 3 + 2 इज इक्वल टू 18। क्योंकि 18 इज डिविजिबल बाई 3, यानी ये वाला नंबर भी है, ये वाला नंबर भी इट इज डिविजिबल बाई 3। तो मैंने 3 से डिवाइड करते चला गया जब तक कि मेरा कैलकुलेटर में डेसिमल में आंसर ना आए। तो डेसिमल में आने से पहले जितने बार मैंने कैलकुलेटर में इक्वल टू प्रेस किया, टू द पावर 3 टू द पावर, वो नंबर ऑफ टाइम्स आई प्रेस द इक्वल टू साइन बिफोर द डेसिमल आ जाएगा। मैंने 3 से पहले इसलिए डिवाइड किया बिकॉज इधर में 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो 3 इधर मेरे को होल नंबर में दिखाई दे रहा है, बोलकर मैंने 3 से डिवाइड करने का पहला स्टेप लिया। ठीक है, हैव आई Okay. आंसर्ड योर क्वेरी? Yes. हाँ, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, वेरी नाइस। ओके, 4 में देखो, बहुत छोटी सी बात है ये, बट बहुत काम आने वाली बात है। लॉगरिथम ऑफ द नंबर्स टू द बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम। दिस इज जस्ट अ नोमेनक्लेचर, मतलब नाम है ये। सो वी से दैट log a to the base 10 आर कॉमन लॉगरिथम। बोलते हैं ऐसे कि log of numbers to the base 10 are known as common logarithm। इनको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम है। So any number to the base 10, log of any number to the base 10 are known as common logarithms। तो इसको भी 4। ये जो पॉइंट्स मैं मार्क करा रहा हूँ, ये किसके लिए मार्क करा रहा हूँ याद करो। लास्ट क्लास क्या डिस्कस किया था कि अपने को फॉर्मूलाज को एक छोटे से नोटबुक में मेंटेन करना है। अपने एकदम सीक्रेट वाला नोटबुक है फॉर
मैथ स्टैट्स एंड एलआर. नाउ कम्स द नेक्स्ट डिस्कशन जिसमें अपने को फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज मिलेंगे. फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम. देखो ये जो फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम है इसका जो बेस है डेरिवेशन है दैट इज फ्रॉम इंडिसेस. बट अभी अपने डेरिवेशन नहीं सीखने बैठेंगे बिकॉज मैथ्स जो वो केवल फाउंडेशन में है. एंड फाउंडेशन में भी जो मैथ्स है वो एमसीक्यू पैटर्न में है. ठीक है. तो अपने डेरिवेशन को अभी डिस्कस नहीं कर रहे. ठीक है. अदरवाइज जस्ट फॉर नॉलेज पॉइंट में ये बता दूं ये जो फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम है इसका पूरा बेस डेरिवेशन लाइज इन द रूट्स ऑफ इंडिसेस. यानी इंडिसेस से ये सारे लॉज ऑफ लॉगरिथम निकाले गए हैं. ठीक है. तो डेरिवेशन को डिस्कस नहीं कर रहे अभी जस्ट लॉज को पढ़ रहे हैं. सो ये मेरा .5 बना इन कंटिन्यूएशन ऑफ .4. .5. So log mn to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a. So log mn to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a. क्लियर है? तो बताओ. Can I write like this? Can I write like this? Can I say this? This is true. Log 36 to the base 2 is equal to log 4 to the base 2 plus log 9 to the base 2. Can I say this? Can I say this is true? Is it true? Yes, sir. Why? Answer is correct. But why? So because 4 into 9 to is. explain अच्छा अच्छा कोई बात नहीं. that 4 into 9 सिंपल एक्सप्लेनेशन कर दो ना. 4 into 9 is 4 into 9 is 36. 36. जैसे जो केमिस्ट है जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वी नो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन वी नो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑफ अ डॉक्टर इन द प्रिस्क्रिप्शन. बट जो केमिस्ट है वो देखकर ठीक समझ जाता है. तो आई एम योर केमिस्ट. ठीक है ना. सो वट एवर मतलब वट एवर एक्सप्लेनेशन यू गिव आई अंडरस्टैंड कि आपने समझा है कि नहीं समझ. पहले अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. ठीक है. तो देखो सो अपने 36 को वी कैन राइट एज 4 into 9. So that is why log 4 to the base 2 plus log 9 to the base 2. Upal is giving one more suggestion. He is saying that sir, 36 can also be written as 18 into 2. So can we write like this? Log 36 to the base 2 is equal to log 18 to the base 2 plus log 2 to the base 2. And we know that log of the same number to the same base is 1. So log 2 to the base 2 is 1. So we can simply write as log 18 to the base 2. So both are correct. Like Correct. 4 into 9 in that. हाँ definitely. Clear है? Yes. Yes, sir. ना एक चीज मेरे को बताना.
So can you once scroll Correct. up? हाँ ठीक है, एक चीज मेरे को बताना, ये सुपर करेक्ट है बेटा। सुनो, अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। जैसे इज दिस पॉसिबल? Yes, sir, it is possible. थिंक एंड टेल मी। Yes, sir. बोलो, इज बानी करेक्ट? द रेस्ट इफ यू टेल मी, इज बानी करेक्ट? बानी says it is possible. If it is Sir, possible, why? मतलब it is a guess. मतलब I think 80% it is possible. नहीं, ऐसे अपने आंसर नहीं कर सकते। अरे sir, ठीक Yes, है दिस sir, sir. I इज, think it Please is correct. possible. आपने एक चीज चेक नहीं की है, ये और इधर में देखो, क्या इधर हम्म, में a इंटू ए स्क्वायर हो गया था क्या? नहीं, तो इधर में 2 इंटू 5 10 कैसे हो सकता है? it has to be same. करेक्ट। मतलब ये लॉ अप्लाई करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, इधर में बेस डिफरेंट है। log 3 to the base 2 है एंड log 4 to the base 5 है, बेस शुड बी सेम। It is not applicable for different bases. Very nice. This law is not applicable for different bases. Very correctly interpreted by people. Okay, this law is not applicable for different bases. Okay. So now, अगर कोई मेरे को ये बोलता है find out this, so we can write, है ना, log 3 Yes, to the this is base 2, correct. correct, है ना। तो ये 5 हुआ नेक्स्ट। फिर सेकेंड लॉ जो हमारे लिए पॉइंट 6 है। अब m इंटू एन था तो प्लस था, m/n है तो माइनस, बिकॉज माइनस है ना, डिवीजन का काम क्या है, बांटना, तो इसलिए log m माइनस log n। बेस को पकड़ लो, सेम है, सो log m/n to the base a is equal to log m minus log n to the base a। क्लियर है? Yes, sir. अब इसमें एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ये है, जैसे लॉग हाफ करते हैं, इसको मैं लिख रहा था, लॉग हाफ, लॉग हाफ मीन्स 1/2 लॉग, है ना, 1/2 लॉग हाफ टू द बेस, कोई भी बेस है, से 10 या बेस ए या बेस बी जो भी, इज इक्वल टू log 1 माइनस log 2। log 1 क्या होता है? log 1 टू एनी बेसिस, इसको याद है,
log 1 is always equal to 0. 0, है ना? log 1 is always equal to 0. So इसका आंसर is minus log 2. So log half is equal to minus log 2. Clear है? Yes, sir. Then next law 3 जो हमारे लिए पॉइंट 7, log m to the power n to the base a is equal to n into log m to the base a. So log m to the power n to the base a is equal to n into log m to the base a. इसका प्रूफ इन्होंने दिया हुआ है, तो अपने चाहे तो पढ़ सकते, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना टाइम झूठ मूठ कर इसमें दो. ठीक है? क्लियर है? अब दो एक इलस्ट्रेशंस है, बट उन दो एक इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करने से पहले 7 जो पॉइंट्स हमने लिखा है उसका क्विक रिवीजन. हाँ, राइट. सो सबसे पहले a to the power x is equal to n, which means log n to the base a is equal to x. Point 2, log 1 is always 0. Log of any number to the same base is always 1. Log a to the base a is 1. 4, log of any number to the base 10 are known as common logarithms. 0.5, log mn is equal to log m plus n. Base must be the same. Log m by n is equal to log m minus log n. Base must be the same. Log m to the power n is equal to n into log m. Now, coming to the illustration. Find the logarithm of 1728 to the base 2 into square root of 3. ठीक है? अपन ना देखना अभी क्या होगा. तो अपने को log 1728 इसको लिख लेते हैं, यहां पर जगह शॉर्ट हो सकता है. No, it is not there, beta. As I said, na. Is it possible to have it in the MCQ? Huh? MCQ में it is possible. What questions you're asking, बताओ. एक सेकंड. So log 1728 to the base 2 into square root of 3, ये अपने को फाइंड आउट करना है. तो इसको अपने एक बार x ले लेते हैं, यानी बेसिकली अपने को x फाइंड आउट करना है. तो बस अब इसको लिख लिख कर करते हैं. क्या था? 2 into square root of 3 ना, in this case. तो अपने को x फाइंड आउट करना है, राइट? यस. देखो एकदम सेम हो गया. अपन अब रिवीजन होगा ना. अब इसमें मैं क्या करूंगा, पहले क्योंकि होल नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड कर रहा हूं. सो 1728 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू को काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 6 6 बार मैंने इक्वल टू प्रेस किया, क्योंकि उसके बाद अगर इक्वल टू प्रेस करता हूं तो डेसिमल में आ रहा है.
तो 6 बार इक्वल टू प्रेस करने के बाद आंसर आ रहा है 27। तो 1728 को 2 से डिवाइड किया। क्यों? पहले 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इधर में होल नंबर में 2 है, तो 2 से डिवाइड करते चले गए एंड जितना बार इक्वल टू प्रेस किया काउंट किया, तो 6 बार इक्वल टू प्रेस किया, यानी ये 6 बार 2 से डिवाइड हो सकता है। सो इट इज डिविजिबल बाय 2 to the power 6। करके कैलकुलेटर में भी 27 आ रहा है एंड 27 को अपने 3 to थ्री the टू द power पावर 3, है ना बेटा? भी क्लियर है? अब देख, इधर में एलएचएस में स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसको भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करें? 3 to the power 3 कैन बी रिटन एज 3 to the power हाफ इंटू 6। हाफ इंटू 6 is 3 and 3 to the power half is square root of 3। एग्जाम में डेफिनेटली इतना स्टेप्स नहीं लिखना है बिकॉज एमसीक्यू पेपर है, बार बार क्या ही बोलो की चीज को, डजंट मेक सेंस। ये तो क्लास का अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। अब बोलो, a to the power 6 into b to the power 6 is, अब एलएचएस में when the base is same the power is equal, यानी x is equal to 6। x is equal to 6 मतलब क्या? x is equal to 6 मतलब क्या? log 178 to the base 2 square root 3 is equal to 6। x is equal to 6 मतलब क्या? x क्या है? ये है। So log 1728 to the base 2 to the power 2 square root of 3 is equal to 6। करेक्ट। समझ में आया? फटाफट। क्लियर है बानी? अय Yes, sir. अभी देखो, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिख लूं? लिख लेते हैं। क्वेश्चन देख लिया ना? मटेरियल अपने पास है, तो इसको लिख Yes, कर sir. सॉल्व करना है। आप लोग, जब मैं क्वेश्चन कॉपी करूं तो आप लोग का काम है कि मैं देखो कि मैं क्वेश्चन करेक्ट कॉपी कर रहा हूं कि नहीं, बिकॉज मेरे दिमाग में चलते रहता है कि इसको और इजी वे में कैसे समझाया जा सकता है। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में सॉल्व, आप लोग खाली क्वेश्चन चेक करना कि सर ने क्वेश्चन करेक्ट कॉपी किया है कि नहीं किया। ठीक है, रेडी? अब 25, द नंबर 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, यस और नो? तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, अग्री करो, बिकॉज हमने क्या सीखा था? log m to the power n is equal to n into log m, यानी कि log 5 to the power 2 is equal to
2 इंटू लॉग 5, है ना? फटाफट रिस्पॉन्स। बानी क्लियर है आपको? नहीं सर। हट, पगली। ठीक है, 25 को कैसे लिख सकता है? 5 to the power 2, तो बोलती भी तो नहीं है ना। नहीं क्लियर तो तू तो पूछता सर है। सर मैं प्रोसेस करने की बहुत कोशिश करती हूँ बट वो बाउंसर निकल जाता है। अरे तो कोई बात नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर, इट्स मैथ्स, अंडरस्टैंड। तो आई एम ऑल्सो, मैं भी तो अपने अपने दोनों को साथ में काम करना है ना। अपने को समझना पड़ेगा कि हाँ, ये एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा बेसिकली, तो होता है। बट अपने को सॉल्व करना है, सोल्यूशन ढूंढना है इसका कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो फटाफट रिस्पॉन्ड करो कि समझ में आया कि नहीं है। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है ना? तो दोबारा से समझाया जाएगा उसको। सो 25 इज व्हाट? 5 स्क्वायर। 25 इज फाइव यस सर। स्क्वायर ठीक है। तो अब देखो, हमें ये वाला लॉ क्लियर है। लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m। ये यस सर। क्लियर है ना? तो अभी लॉग 5 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 इंटू लॉग 5। हम्म। तो वही मैंने किया है, सीधे बात कर। यही मैंने किया इधर में। लॉग 25 को कैसे लिखा? 2 log 5। लॉग 25 को कैसे लिखा? 2 log 5। ओके सर। पूरा क्लियर है कि मन बेमन से यस बोल रहा सर। हूँ क्या? नहीं नहीं सर क्लियर है। हम्म। एटीन को कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, 18 इज 9 into 2। हम्म। ये सुनो, यस सर। हौले स्टेप बाय स्टेप करें। इधर में 1/2 into 2 कैंसल होके 1 हो रहा है। तो ये मेरा लास्ट में बच जा रहा है log 5। 2 log 3। अब log 9 into 2 बोलो, इज log 9 प्लस log 2। याद करो कैसे समझा, कौन सा लॉ काम कर रहा है इसके पीछे? log m इंटू n इज इक्वल टू log m एम प्लस log। प्लस लॉग एन। सो 18 कैन बी रिटन एज 9 into 2। सो log 9 प्लस log 2। ठीक है। अच्छा, 9 को जो है 3 स्क्वायर, 9 is 3 स्क्वायर। यस यानी सर। दिस इज माई लॉग, साइड में देखो, log 3 स्क्वायर। so log 3 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 log 3। ये सोनो, यस सर। आपके चक्कर में देखो मैंने बेस कहाँ पर लिख दिया ये वाला। हे भगवान, माफ करना मेरे को। बिकॉज दिमाग में कंटिन्यूसली चलता है कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही चीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है स्टेप बाय स्टेप? Yes, देयर sir. इज नो डाउट, ओके। अब बताओ, कुछ कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? Yes, sir. 2 log. कैंसिल हो गया ये।
बिकॉज माइनस 2 log 3 प्लस 2 log 3 माइनस प्लस 0, तो लास्ट में क्या बचा? ये बचा, करेक्ट है। अब बेस सेम है, 5 into 2 is 10, 5 into 2 is 10, है ना? जैसे हम लोग सीखे है ना? Answer is 1. करेक्ट। जैसे अपने पास 5 log 5 प्लस log 2 है, सो दिस कैन रिटन एज log 5 into 10, सॉरी log 5 into 2। हमारे पास log 5 प्लस log 2 है, सो दिस कैन रिटन एज log 5 into 2। 5 into 2 is 10, तो आंसर इज log 10 to the base 10। आंसर 1 क्यों बोलिए परना? क्या सोची उसके पीछे? आंसर इज करेक्ट, बट 1 क्यों? क्या सोचा Sir, बेटा? because the base and the result is same. Correct. Aparna is saying that log of any number to the same base is 1. So log of 10 to the base 10 is 1. Log of 253 to the base 253 is 1. So log 10 to the base 10 is 1. So answer is 1. Base and log is same. बोल बेटा, क्लियर है? सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अभी यहीं पर अपने स्टॉप कर रहे हैं, बिकॉज आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है कि अपने स्टेप बाय स्टेप जितना भी अभी तक कर लिया है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, तो अपने बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, बट डेफिनेटली जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ते जाएगा, अपना कैचिंग पावर बढ़ते जाएगा, तो स्पीड भी ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप खुद से अप्रिशिएट करोगे कि हाँ सर, हुआ इम्प्रूवमेंट, बड़ा है। ठीक है, तो अपने यहीं पर अभी स्टॉप कर रहे हैं, और जैसा हमने डिसाइड किया था कि हर मैथ्स क्लास का क्या तरीका है कि क्लास को करते टाइम फुल अटेंशन, फुल कंसंट्रेशन एंड फुल पार्टिसिपेशन देना है, 100% क्लास में ही रहना है, राइट। एंड देन क्लास खत्म होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है, तो उस रिकॉर्डिंग को देख कर रिवाइज करना है। रिवीजन का क्या तरीका है? रिटन प्रैक्टिस करना है। हम लोग इंस्टीट्यूट के सारे सम्स को कवर कर रहे हैं, A to Z, इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज, एवरीथिंग। तो इतना हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, बिकॉज सिलेबस के बाद हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप देखोगे कि सारे क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं, बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो यही अपना तरीका होगा। तो आज की क्लास के लिए भी अपने को सेम चीज करना है, राइट। रिकॉर्डिंग से एक बार रिवाइज करना है बाय डूइंग रिटन प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डन इन द क्लास। एंड यस, जरूर से जरूर वो स्मॉल नोटबुक को मेंटेन करना है, सारा फॉर्मूलाज को एक बार खुद से लिख कर भी प्रैक्टिस करना है। जब तक अपने लोग चीजों को लिखते नहीं है, वो हमारे दिमाग में परफेक्ट तरीके से रजिस्टर नहीं होता। सो दिमाग में परफेक्ट तरीके से चीजों को बैठाने के लिए अपने को रिटन प्रैक्टिस करना है, एंड बार बार कंसिस्टेंट बेसिस में रिवाइज करना है। यस, करेक्ट। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।